This is Sherry Punjab Radio, AM 600, Vancouver. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਡੇ ਹੈ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਲ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਮੰਡੇਲਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਹੋਮ ਬੇਸਡ ਗਾਰਡਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡੂ ਵਟ ਯੂ ਕੈਨ ਵਿਦ ਵਟ ਯੂ ਹੈਵ ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਕੌਣ ਸਨ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੀ ਮੋਟੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਅਪਾਰਟੇਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1994 ਤੋਂ 1999 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਲਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸੂਰਜ ਯੇਂਗੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਯੇਂਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ। 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਲਿਤ PhD ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਉਸੇ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ PhD ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਲਾਅ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਅਟਰਨੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਸਟ, ਰੇਸ, ਐਥਨੀਸਿਟੀ, ਲੇਬਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਆਈ ਸੀ ਕਾਸਟ ਮੈਟਰਸ। ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗੇਨ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਸੂਰਜ ਯੇਂਗੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। सूरज जी स्वागत है आपका। नवजोत जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके साथ लाइव फिर एक बार बात करने की। पहले हमने लाइव इन पर्सन की थी जब हम वैंकूवर में चेतना एसोसिएशन के इवेंट में मिले थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए और आप सबके लिसनर्स को मेरी तरफ से नमस्कार। सो आज क्योंकि नेल्सन मंडेला की ही हम बात कर रहे हैं तो मैं उसी से शुरुआत करना चाहूँगी कि नेल्सन मंडेला की ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो उन्हें याद किया जा रहा है। उन्हें मतलब जिस तरह से याद किया जा रहा है नेचुरली रिस्पेक्ट है उनके लिए, लेकिन फिर भी सूरज वो एक कंट्रोवर्शियल फिगर भी रहे हैं। राइटिस्ट जो लोग हैं उन्हें कम्युनिस्ट टेररिस्ट कहते रहे और फार लेफ्टिस्ट वाले उन्हें अपार्टाइड के जो सपोर्टर्स हैं उनके तौर पर भी याद करते हैं। अगर आपने देखना हो नेल्सन मंडेला को, क्योंकि आप बहुत करीब से आप अफ्रीका में पढ़ रहे थे, आपने वहाँ आप गुजरे हैं उन लोगों के दौरान, आप नेल्सन मंडेला को कैसे देखते हैं, कैसे याद कर रहे हैं आज? मुझे लगता है मैं सबसे पहले आपके जो रिसर्च आपने की मैं उसके लिए आप सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो 2 तरीके से जिस तरह से एक नेल्सन मंडेला को देखा गया है वो केवल उनके साथ ही नहीं
बल्कि अनेक लोगों के साथ थे। मैं आपको बताऊं कि जब उनकी डेथ हुई थी, जैसा आपने बताया कि मैं उसी यूनिवर्सिटी में गया हूँ जहाँ पर ये खुद पढ़े हैं जी। तो जब उनकी डेथ 2013 दिसंबर के 5 को हुई थी, तब मैं उसी कैंपस के स्टूडेंट हाउसिंग में रहता था। और उस दिन जब मैं उठा, मैं क्योंकि कैंपस में रहता था, तो बाहर की जो गाड़ियां जो होती थी आने वाली वो रेगुलर थी, बट उस हवा है या जो उस तरह का जो एक एम्बियंस था वो थोड़ा सा डाउन मुझे एहसास हुआ। मुझे पता नहीं था अब तक कि नेल्सन मंडेला जी का देहांत हुआ है। तो हवा उदास लगी आपको? उदास लगी हवा आपको? एकदम बिल्कुल मैं बताऊं आपको। और जब मुझे पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है बाहर, क्योंकि मैं तो अपने बालकनी से बस बाहर झांक रहा था। और जब फिर मैंने अपना फोन चालू करके जब मैंने देखा तो मैंने बोला ये बात है। तो फिर मैं उनके फ्यूनरल में भी गया। अच्छा। उनका जो घर था वहां पर, और फिर एक बड़ा मेमोरियल उनके लिए ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पर देश विदेश के सभी हेड ऑफ स्टेट आए थे। मैं वो उसके इवेंट को भी 2 दिन बाद जब किया था, तब उसको भी गया। ये रहा मेरा व्यक्तिगत थोड़ा सा डिस्टेंट संपर्क जिस नेल्सन मंडेला जी के साथ हुआ है। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। देखिए, दुनिया के जो भी लीडर्स हुए हैं, जिन्होंने भी एक अपनी पोजीशन ली है, एक स्टैंड लिया है, उनको हमेशा से अलग अलग नाप से जज किया गया है। और इसके लिए एक ट्रेजेडी बनती है कि जो प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट्स की एक वर्जन नहीं होती है, और उसका एक महत्व भी, उनका एक बड़प्पन भी है कि उनको हर एक किस्म के लोग अपनी तरफ से देखकर अपने आप को सोचते हैं। तो उनकी तरफ से जो क्रिटिसिज्म हुआ वो बिल्कुल वो केवल लेफ्ट और राइट नहीं, बल्कि कुछ ब्लैक अफ्रीकन से भी हुआ था और हो रहा है। उनके पॉलिसीज को लेकर वो बहुत जगह तो कहते कि इन्होंने ब्लैक अफ्रीकन की इकोनॉमी गोरों के हाथ में ही रखी, ब्लैक लोगों को तो बस पॉलिटिकल फ्रीडम मिला है। तो ये जो लिमिटेड जब हम काम करते हैं एक गवर्नमेंट या ये पॉलिसी चलाने में, तो अनेक कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है। अब ये आपको तभी पता चलेगा जब आप पावर की पोजीशन में होते हो, जब आपको कोई डिसीजन लेना होता है, तो आपको एक तरफा सोचना नहीं पड़ता है, आपको सबका सोचना पड़ता है। यू आर लाइक द फादर ऑफ योर फैमिली। आप आपके परिवार के जिस तरह से पिता होते हो, उस तरह से आपको हर बच्चे का आपको एक तरफा नहीं सोचा जा सकता, सबका हमको साथ में सोचना होता है। तो उसी तरह में कुछ लोगों को उसका डिफिकल्टीज हुई, कुछ लोगों को उससे राहत मिली। पर एक बात जरूर है कि जब नेल्सन मंडेला ही हो गए और बाकी के जो ग्लोबल ब्लैक लीडर्स तैयार हुए हैं, जो लिबरल विचारधारा से जिन्होंने खुद को अलाइन किया, ऐसा बताते हैं हमेशा, वैसा नहीं है। वो अपनी एक गरीबों को न्याय देने वाली उनकी सोच है। और जो हाशिए पर है, जिनको मौका कभी नहीं मिला, जिनके ऊपर जुल्म होता है, ऐसे लोगों के जुल्म के खिलाफ भी ये लोगों ने अपने जिंदगी का मकसद बनाया लड़ने के लिए। तो इसको देखिए, हर पैगंबर की यही दास्तां है। और ये मंडेला जी के साथ भी होना था। और जो भी पब्लिक स्पेस में लोग हैं जो आज के डेट में छोटा मोटा ही क्यों ना काम करते हो, उनके साथ भी इसी तरह से तराशा जाएगा और ये होता रहेगा। सूरज, ये बिल्कुल सही बात है कि जो लोग इस लेवल पे काम करते हैं उनके बहुत से विरोधी होते हैं और बहुत से लोग उनके पक्ष में होते हैं। आप दलित ब्लैक लाइव्स मैटर्स सिंपोजियम के साथ भी जुड़े हुए हैं। एक तरफ दलित होना और दूसरी तरफ ब्लैक होना, आप इन दोनों चीजों को इकट्ठा कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये एक तरीके से ये एक एकेडमिक डिस्कशन ही मुझे लग रहा है। बड़ा मजा आ रहा है इस सवाल से। अच्छा, देखिए, दलित और ब्लैक की सिचुएशन तो हमको उनकी हालात से समझना होगा। और उनके हालात जो है वो उनको बाय बर्थ उनको एक स्टेटस दिया गया है, उनको एक रैंक दी गई है, और उसके हिसाब से सोसाइटी उनके साथ
बर्ताव करती है। अब रही ब्लैक लोगों की बात, ब्लैक तो एक बड़ी कैटेगरी हो गई है, ब्लैक होना क्या, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी डिबेट हो सकती है। पर आमतौर पर यह देखा गया है कि जो अफ्रीका से जिन्होंने जो ओरिजिन रखते हैं उनको ब्लैक बोला गया है। सिर्फ अफ्रीका में शायद उनके 10 जनरेशन ना हो, पर उनकी एक अपरूटिंग हुई है वहां से, इस तरह से ब्लैक को देखा जाता है। और दलितों की तो बात है कि जो जिस औरत के गर्भ को अछूत करार गया है, उस गर्भ से निकलने वाले बच्चे को अछूत कहा जाता है। और वही अछूतों की दास्तान दलित के इसमें हम आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। तो हमारा ये विचार था, मैं जब इस विषय को सोच रहा था कि दलित जो लोग हैं, जो जाति से मारे गए, जो हालांकि हमेशा लोअर कास्ट या नीच नहीं थे, एक जमाने के राजा थे, एक जमाने की उनकी विरासत थी, वो खुद को एक तो बुद्धिस्ट सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन उसके पहले की, उससे उनका ताल्लुक है, उनका जो चयन है वो एक हिस्टोरिकल है, वो ऐतिहासिक तौर पर ये एक भारत का मूल निवासी वर्ग है जिसका अपना एक राज्य था। पर जब ब्राह्मणिज्म, जिसको ब्राह्मणवाद कहते हैं, उसका वो हावी हुआ, स्पेशली बुद्ध के आने के बाद, 100-150 साल के बाद ये चलता गया, तो उसके बाद फिर ये लोगों को, जो एक जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर इनको पनिश ही करना है तो कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो लड़ना भी सीखते हैं और मौका मिला तो अपना राज वापस लाएंगे। अब इनको पावर से दूर कैसा रखा जाए, तो ऐसा करो कि इनकी लाइफ की हर अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल खत्म कर दो। तो किस तरह से किया जाए, तो इनको समाज का अछूत बनाओ। अब जब तुम समाज के अछूत बना देते हो तो तुमको नॉन टचेबल कैटेगरी में रखते हैं, तो ताकि तुम्हारे साथ ना कोई समाज व्यवहार करे, ना कोई तुम्हारे साथ रोटी बेटी करे, और तुमको आगे बढ़ने का मौका दिया। और ये हजारों सालों तक बोला गया, तो वो सोच रहे थे कि इनको इंटरनलाइज होगा, बट ये ऐसा नहीं है। ब्लैक लोग भी, जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन 300-400 साल पहले का जब हम देखते हैं, तो उसी तर्ज पर तैयार हुआ कि ब्लैक एक नीचा है, इंफीरियर है, काले लोग खूबसूरत नहीं होते, बदसूरत है, ये इनकी बाल घुंघरालू है, ये ब्यूटी स्टैंडर्ड्स नहीं है, इनके होंठ देखो कैसे, यही स्टैंडर्ड्स से उनको नापा गया। ये सोच नहीं सकते, इनको जानवरों की तरह बर्ताव देकर ही इनको ठीक किया जा सकता, यही हालत है। तो फिर मुझे लगा क्यों ना ये ऐसा, जो दो दुनिया के जो प्रताड़ित लोग हैं, जिनके ऊपर अन्याय होता है, क्यों ना ये दोनों को मिलाकर एक नई दुनिया अगर बनानी है, क्यों ना ये दो लोग जो जिनको इतिहास के पन्नों में दबाया गया है, क्यों ना ये अपनी एक नई दुनिया बनाए, जिसमें न्याय हो, समानता हो, जिसमें फ्रेटर्निटी, जिसको बंधुता कहते हैं, और जिसमें लेन देन प्यार के तौर पर हो, इस तरह की समाज की रचना करनी हो। तो उसके लिए ये दलित और ब्लैक सिंपोजियम, दलित और ब्लैक पावर मूवमेंट के अनेक प्रयोग मैं अपने पास्ट में किया हूँ, और भी उसके ऊपर काम जारी है। जब हम नेल्सन मंडेला की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, और जब आप इस वक्त बात कर रहे हैं, जिस चीज़ पे आप काम कर रहे हैं, वो कोई ज़्यादा अलग नहीं है उससे, बल्कि और ज़्यादा एस्पेक्ट्स उसके आपको देखने को मिल रहे हैं। नेल्सन मंडेला को विश्व भर में डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस के समर्थक के तौर पर जाना जाता है। उन्हें 250 से ज़्यादा जो मान सम्मान मिले हैं, जिनमें नोबेल पीस प्राइज भी शामिल है, और अफ्रीका में उन्हें फादर ऑफ द नेशन के तौर पर भी जाना जाता है, याद किया जाता है। लेकिन बात मैं जो आपसे पूछने वाली हूँ कि ये सब कुछ अपनी जगह है, अब जिस चीज़ की नेल्सन मंडेला ने शुरुआत की, और उस टाइम से लेकर अब तक अगर प्रोग्रेशन देखें तो हम किस तरफ जा रहे हैं आपकी नज़र से? मुझे लगता है कि बहुत ही प्रैग्मेटिक इसका जवाब देना होगा कि ये जो मान सम्मान हमने दिया, और हम क्या करते हैं कि पैगंबरों के हम पुतले बना देते हैं, बिल्कुल, और कभी कभी उनको भगवान खुदा बना देते हैं, उनको संत महंत बना देते हैं, ताकि एक उनसे जो मिलने वाला जो इंस्पिरेशन है वो समाज में जाए। अब क्या होता है कि जब जो मुद्दों को लेकर ये लोग लड़े,
मंडेला जी जो जिसके ऊपर लड़े, जो नस्लवाद के खिलाफ था जी, जो ऊंच नीचता के खिलाफ था उनकी लड़ाई। हालांकि मैं आपको एक बताऊं कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से इंस्पिरेशन लिया था। उन्होंने एक जब उनकी 100 बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, तब नेल्सन मंडेला जी ने एक छोटा सा नोट भेजा था लंदन के अम्बेडकराइट्स को जो बर्थ सेंटेनरी बना रहे थे। तो उन्होंने कहा था कि अम्बेडकर के जैसा जो समाज वो बनाना चाहते हैं उस तरह का समाज हम भी बनाए, और उन्होंने जो संविधान में जो चीजें दी है हम लाना चाहते हैं, इस तरह का उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था। तो हम देखते हैं कि इतिहास के अलग अलग पन्नों में हमको अलग अलग रेफरेंसेस मिलते हैं। और आज की परिस्थिति देखिए, इकोनॉमिकली और रेशियली, नस्ल और अर्थ के आधार पर आज भी एकदम डिविजिव है। आज भी जो है इकोनॉमिक चंद लोगों के हाथ में है, जिसको हम प्लूटोक्रेसी कहते हैं जी। और ये जो न्यू लिबरल इकोनॉमी, आज की इकोनॉमी जो है, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। हर जगह तुम देखते हो कि एक कंपनी का मालिक दुनिया के लोगों को, देश के लोगों का भवितव्य ठहराता है। ये तो देश की जवाबदारी होनी चाहिए। तो जब हम इस तरह की असमानताएं देखते हैं, उससे फिर लोगों के पास, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं है, और अगर जो लोग किसी सोसाइटी में थोड़ा सा अपना चला रहे हैं, मिनिमम वेज के ऊपर अपना घर बसा रहे हैं, तो थोड़ा सा 1-2 बच्चे हैं तो बेचारे दोनों माँ बाप काम करके बच्चों की पढ़ाई करना देता रहे, फिर वो चाहे इमिग्रेंट हो, रेफ्यूजी हो, या अपने ही देश के लोग हो, जो भी देश में है। फिर उधर पुलिस के द्वारा ये जो नस्ल की, जो खुद को ऊंचा समझने वाले लोग हैं, ये नस्ल की हिंसा कर रहे हैं। तो आपका सवाल जो है ये बिल्कुल इसी सेंटर में जाता है, ये कोर में जाता है कि आज का फिर इम्पैक्ट क्या है। तो सिलेक्टिव एम्ब्रेस हुआ है नेल्सन मंडेला या अन्य लोगों का, उनकी इतनी विरासत है। उन्होंने इनफैक्ट नेल्सन मंडेला एक जमाने में अपार्थाइड के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने आर्म विंग शुरू की जी, ताकि इनको, वो सोचते थे कि बंदूक से लेकर लड़ेंगे और इनको उखाड़ फेंकेंगे, पर फिर उसके बाद जेल में तो वो इतने साल उन्होंने बिताए, और उस जेल के उन्होंने अपना एक मॉडल प्रपोज किया। तो देखिए फिर एक सेलेक्टिव अप्रोच हो जाता है नेल्सन मंडेला की ओर देखा जाए तो। पर और भी लोग हैं उनकी इर्द-गिर्द, जैसे रॉबर्ट सबूक के, उनके साथ साथ उनकी विनी मंडेला जो उनकी वाइफ थी, जो इस लड़ाई में थी, अहमद कथराड़ा जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे। तो अनेक लोग उनके साथ उनके साथ इस आंदोलन में बिताए, पर उनकी लेगेसी को रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए काफी कम लोग मुझे लगता है इसको देख सकते, क्योंकि इसको बहुत बड़ा कलेजा लगता है। इस आदमी ने 27 साल बंद सलाखों में बिल्कुल गुजारे हैं। 27 साल। मैं तो 34 साल का हूँ, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरी लाइफ थी 27 साल। तो वो मोरालिटी, वो पेशेंस, वो डेडिकेशन, उसकी कंपैरिजन तो मुझे नहीं लगता कहीं कर सकते हैं। वो एक ही नेल्सन मंडेला हो सकता है, पर जो नेल्सन मंडेला का सेलिब्रेशन करते करते उनके कामों का क्या हुआ है, उनके उद्देश्य का क्या हुआ है, इसके ऊपर बहुत कम रिफ्लेक्शन होता है। फिर वो हर पंथ में, हर धर्म में, हर देश में यही हालात है। और अगर आज की परिस्थिति देखिए तो साउथ अफ्रीका वर्ल्ड का वन ऑफ द लीडिंग अनइक्वल कंट्री है। जब मैं उधर था वर्ल्ड का नंबर 1 अनइक्वल कंट्री तो उस जमाने में था जी। अच्छा, क्योंकि कास्ट के ऊपर आपने लिखा है कास्ट मैटर्स, मैंने बेशक वो किताब पढ़ी नहीं है, लेकिन आपने बहुत से लेक्चर्स डिलीवर किए हैं। आप इन इश्यूज के ऊपर आपके मोर देन 300 लेक्चर्स आप दे चुके हैं, शायद उससे ज़्यादा ही होंगे। मैं जब भारत की तरफ देखती हूँ, क्योंकि आप भी भारत से हैं, मैं भी भारत से हूँ, बेशक हम लोग आज कनाडा में बैठे हैं, लेकिन कास्ट का जो असर है या कास्ट की वो जो इम्प्रेशन है, इम्पैक्ट है, वो हम इस सोसाइटी में भी अपनी में देख रहे हैं। बेशक थोड़ी बहुत फॉर्म जो है वो चेंज हो जाती है।
एक सवाल मेरे मन में हमेशा आता है कि हम खूबसूरती की परिभाषा अभी तक क्यों नहीं बदल सके, क्योंकि खूबसूरती जब भी जिक्र आता है खूबसूरती का तो गोरे रंग की बात होती है। आज तक कोई काला रंग उस तरह से प्रमोट नहीं कर पाया। हम उस कंट्री में से हैं, उस देश में से हैं जिसमें फेयर एंड लवली की बात होती है और दिन रात हमें ये मैसेज दिया जाता है, हमारे वो कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में मैसेज बार बार घुसेड़ा जा रहा है कि फेयर एंड लवली और वाइट इज फेयर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हम क्यों नहीं कुछ कर पाए और कोई इस चीज का एतराज भी नहीं हो रहा? इस तरह की एड्स चल रही हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स जिनको प्रमोट किया जा रहा है, जब वाइट को उस तरह से हम सुपीरियर दिखा रहे हैं तो ब्लैक तो ऑटोमेटिकली हमारे कॉन्शियस में जाकर खराब बन रहा है। प्रोफेसर नवजोत जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है और मैं एज ए इंडियन मैं खुद से शर्मिंदा हूँ कि ये फेयर एंड लवली का आज भी इतना पुरस्कार इतना एम्ब्रेस होता है। मैं उसी कल्चर से मैं भी पला बड़ा हूँ, नंदेड़ से आता हूँ और हमारे यहाँ भी जो स्किन है, आज भी जब शादी की बात आती है तो लड़की अगर सावले कलर की हो तो माँ बाप को सबसे ज्यादा टेंशन होती है। जहाँ से मैं आता हूँ शायद और रीजन की बात वो ना हो और उसके ऊपर उसकी माँ बेचारी अलग अलग ट्रीटमेंट कर रही है, हालांकि उसी के गर्भ से आई हुई उसकी अपनी खूबसूरत बच्ची है पर उसको वो ज्यादा गोरा दिखाना चाहती है। हैरानी की बात पता क्या है सूरज जी, मैं इसमें और एक चीज ऐड करूं कि हैरानी की बात है, बहुत से पेरेंट्स इस तरह से अपनी कहानियां सुनाते हैं। मतलब एक लड़की अगर गोरी है, दूसरी का रंग काला है, वो बताते हैं कि लड़के वाले आए थे दूसरी को देखने लेकिन वो हमारी गोरी वाली को पसंद करके चले गए और उसके साथ उसकी शादी कर दी जाती है। ये देखिए आप, इस तरह से हम अपने घरों में ये सिस्टम देखते आए हैं। जो आपने मुद्दा उठाया है कि ये जो ऑब्सेशन है हमारा गोरी कलर से ऊपर से लेकर, मैं आपको बताऊं, मैं जब यूरोप में गया था, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। तब एक जर्मन की एक जो गोरी लड़की थी जी, वो जो हम गए थे और हमारे हॉलीडेज में मैं तो स्टूडेंट था और फिर वो जाकर सूरज के नीचे बैठ गई, हालांकि गर्मी थी। तो फिर मैं हो गया यार कि हम तो बताया जाता है हमारे यहाँ तो धूप आई तो घर के अंदर भाग, ये बेचारी खुद टॉवल लेके धूप में सेक रही है जी। तो फिर मुझे समझा नहीं, तो फिर मैंने उसको उस शाम में पूछा कि भैया क्या बात हो गई, आप क्यों जा रहे हैं? तो कह रही है कि मुझे स्किन टैन करनी है। ताकि वो गोरी कलर है, वो चाहती है उसका कलर सांवला हो जी, और हमारे जो है वो चाहते कि कलर उसके तरह हो। बिल्कुल। तो ये डिससैटिस्फैक्शन वो साइड से भी है, क्योंकि मार्केट में ये जो बाजारी ने खूबसूरती तुम्हारी डिसाइड की है, ये बताते हैं कि खूबसूरती इस तरह से। और आज की देखो, अगर मॉडल्स भी रहे तो अगर लड़की मॉडल है तो वो 0 साइज की होनी चाहिए, वो उसके बाल फलाने होने चाहिए उस तरह से। अगर लड़का हो तो उसके 6 एब्स होने चाहिए। ये जो सेलेक्टिव प्रमोशन ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, ये सबसे धोखा है एक बच्चे या बच्ची के आत्मविश्वास के ऊपर। और इसके ऊपर ये इतना मतलब गंदा ये प्रकार है। हालांकि CNN, मैं आपको बताता हूँ, CNN ने पिछले साल में वो इसके ऊपर शायद एक बड़ा रिपोर्ट कर रहे हैं, CNN जो मीडिया है जी, और उन्होंने दुनिया मतलब इंडिया के ऐसे 4-5 एक्सपर्ट्स को बुलाया था, उसमें डर्मेटोलॉजिस्ट थे और बाकी लोग थे, उसमें से मुझे भी बुलाया गया था। अच्छा, कि आप बताओ कि कलर में ये फेयर एंड लवली के चक्कर में और कास्ट में क्या रिलेशंस है क्या? हाँ। और उसके अंदर काफी रिलेशंस है। हाँ। मैं आपको बताऊं, क्योंकि अपने पास जो है अपने जो भगवान है इंडिया के, उनके डिपिक्शन कौन से कलर में किया जाता है? आप मुझे इंडिया के भगवान, ये एक और नई बात हो गई कि इंडिया के भगवान है जो बोलते हैं भगवान सबका एक है, लेकिन जो इंडिया के भगवान है, हाँ जी, उनके कलर तो देखें आप जी किस तरह से होते हैं। फिर वही आप उसको इंडिया के बाहर या ग्लोबल के इसमें देखें, इनको सबको व्हाइट बताया गया है। जीसस तो बेचारे सांवले कलर के थे, मिडिल ईस्टर्न उनका वो कलर था, वो जूश
बैकग्राउंड थी उनकी पैलेस्टीन से थे, और कृष्ण जो थे, कृष्ण तो बेचारे ब्लैक थे, जिनको हम उनके नाम से मराठी में एक शब्द है कृष्ण वर्णीय, यानी ब्लैक जिसका सांवला कलर हो। पर हमारे यहाँ डिपिक्शन इस तरह से किया गया है कि एक अप्रिसिएशन, ये जो आर्य कल्पना है, आर्यन की कल्पना जो है कि जो एक फलाने यूक्रेन या सेंट्रल या ईरान या सेंट्रल एशिया से जो लोग आए, उनके कॉन्सेप्शन में खूबसूरती को डिफाइन किया गया है। तो मुझे लगता है अगर हमको सच में इसको सोचना होगा और उसके ऊपर फिर जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जात के कंडीशन पे हुई है। अगर कोई फलाने जाति से कोई लड़की हो या लड़का हो, उसका लास्ट नेम देख के एक माइंड को हो जाता है कि चलो ये फलाना शर्मा है या पांडे है या फलाना डिंका है। पर अगर उसी स्टैंडर्ड पर नाम अलग हो, कोई दूसरी जाति का नाम हो, तो लोगों में इमीडिएटली सस्पिशन शुरू हो जाता है। लोग पूछते हैं, मैं बताऊं आपको, मुझे काफी जो हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, जो इंडिया में जो आदिवासी है या दलित है या बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, वो मुझे बताते हैं कि उनको अक्सर पूछा जाता है, अगर वो सांवले कलर के, अच्छा तो आपका सच नाम क्या है? अच्छा, यानी वो भरोसा नहीं करना चाहते हैं कि आपका एक स्पेसिफिक कलर या आपकी स्पेसिफिक लाइफस्टाइल आपके जाति की तो नहीं हो सकती। आप अपर कास्ट की, या जिसको मैं कहता हूँ अप्रेसर कास्ट की आप हो सकते हैं। ये जो मेंटालिटी है, ये हमको हमारे रोज के व्यवहार में दिखती है। और मैं सच में मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसे जो नौजवान जो यूथ है, वो शायद इसके आगे सोचना शुरू करें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा हिंसा हम हमारे बच्चों पे कर रहे हैं। और हालांकि मैं भी उसका एक जमाने में विक्टिम रह चुका हूँ। सो सूरज जी, क्योंकि ये लोअर कास्ट की ये बात नहीं है सिर्फ, जब हम ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन के साथ बहुत से और इश्यूज जुड़ जाते हैं, चाहे आपका इकोनॉमिक स्टेटस है, आपका कलर है, आपकी कास्ट है। मैं कई बार ये महसूस करती हूँ कि शायद जब इकोनॉमिक बेटरमेंट किसी व्यक्ति की हो जाती है, ये जो इश्यूज हैं ऑपरेशन के, वो ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो ब्लैक है या किसी भी कास्ट का व्यक्ति है। लेकिन ये मेरा महसूस करना था, मेरा मानना था, मैंने बहुत से लोगों के साथ यहाँ बात की है, कुछ इंग्लैंड में कुछ लोगों के साथ बात की है, जो कहते हैं कि हम लोग सो कॉल्ड लोअर कास्ट से रहे हैं, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इकोनॉमिक उनकी जो पोजीशन है बहुत अच्छी है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, उनके पास वो सब कुछ है जो सो कॉल्ड अपर क्लास के लोगों के पास है या अपर कास्ट के लोगों के साथ है, लेकिन फिर भी उन्हें इक्वालिटी से नहीं देखा जाता, इक्वालिटी से ट्रीट नहीं किया जाता। आप क्या सोचते हैं कि इकोनॉमिक स्थिति बेहतर होने से ये ऑपरेशन है, जो चाहे जेंडर बेस्ड है या फिर कास्ट बेस्ड है, कलर बेस्ड है, ये कम हो जाता है या नहीं? नहीं, कुछ हद तक जो एक्सपीरियंस वेरी हो सकता है। अभी अपने पास अनफॉर्चुनेटली डेटा नहीं है, अच्छा, जो हमको बता सके रिसर्च के तौर पर कि होता है या नहीं होता है। एनेक्डोटली मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से इकोनॉमिक स्टेटस मिलने के बावजूद भी आपका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि देखिए आपको मैं इस तरह से बताता हूँ, चलो एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के एक रूल है और उस बिल्डिंग में 10 अपार्टमेंट है। अब उसमें का आप अनेक जाति के लोगों के अपार्टमेंट है, चलो खैर करते उसमें से जो जाति से जिसको मारा गया है वो व्यक्ति उसी अपार्टमेंट में कुछ अच्छा करता है। अब अगर उस अपार्टमेंट में कुछ करना भी चाहे, पर उस अपार्टमेंट के रूल ही ऐसे है, वो उसको फिर भी उसी के अपार्टमेंट में बंद करके रखेंगे, तेरी इतने ही स्टेटस है, इसके बाहर तो कुछ मत कर। जातियों की जो ये हुई है, जातियां एक अलग अलग तरह के रूम है, और जो कास्ट एक बिल्डिंग के टाइप में है, जिसका डिसीजन, जिसके रूल्स ये कोई और बना रहा है। तो आप स्ट्रक्चर के बाहर निकल के अगर जाएंगे तो शायद फिर जात का उसको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। पर अगर
आगे वाला व्यक्ति, देखिए इंडियन में एक बहुत खासियत है, वो जात ढूंढने की कोशिश करता है, क्या करती है जी, क्योंकि वो खुद को देखना चाहती है कि वो कितनी ऊपर है या कितनी नीचे है। खुद का असेसमेंट जाति के तौर पर किया जाता है। और ये जो बात है कि इकोनॉमिक स्टेटस पे, देखिए अगर औरत ने भी कमा लिया है तो कुछ हद तक उसको अपनी इंडिपेंडेंस है, उसकी अपनी एक स्टेटस है। पर अगर वो एक पितृसत्ताक सोसाइटी में रहती है जहां पर मर्दों का बोलबाला हो, तो बेचारी वो करेगी भी कितना। हालांकि उसकी खुद की कंपनी हो या मालिक हो 100 करोड़ की या जो भी कुछ उसका है, उसका अपने लेवल में उसका पावर हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि टोटली पावरलेस है वो, उसके पास पावर है अपने। पर एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखा जाए, जो समाज अन्यायपूर्ण है, जो डिस्क्रिमिनेशन को अपना एक बेस समझता है, उसमें बदल कैसे हो सकता है? बिल्कुल, खुद दे विल स्टिल लुक हर एज अ वुमन और समबडी एज सर्टेन कास्ट। अच्छा, तो ये चीज मैं आपसे पूछने वाली थी कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं वो कैसे पॉसिबल हो सकेंगी? जब गवर्नमेंट की बात होती है तो बहुत सी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बेशक है, लेकिन जो ऑपरेशर है और जो ऑप्रेस्ड व्यक्ति है, उनके जो रिलेशंस हैं वो तो उस तरह से रहेंगे कि वो जो ऑप्रेसर है वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ना चाह रहा। लेकिन उस टाइम फिर बात आती है कि कानून कैसे हैं, गवर्नमेंट कैसी है और इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। जैसे इंडिया की हम बात करें, कानून तो बहुत अच्छे बने हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे सारी स्थिति बेहतर नहीं हो गई। जो ऑपरेशन है वो चल रहा है, तो कमी कहाँ रह जाती है? बहुत अच्छा सवाल। फिर एक बार देखिए, ये जो कमी की बात है, देखिए बनाने वालों ने एक सोसाइटी की एक सोच के रखा, किस तरह से सोच, एक बेगमपुरा उन्होंने अपने सोच में रखा। जैसा गुरु रविदास जी ने एक सोचा था कि जहाँ पर सबको समानता मिले, सबको हक मिले, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं, सबको प्यार मिले, सबके साथ एक तरह से मानव रूपी बर्ताव हो। जैसे गुरु नानक जी ने सोचा था कि एक ऐसा समाज बनाएंगे, ऐसा पंथ बनाएंगे, ऐसा खालसा बनाएंगे जहां पर ये सब चीजों को खत्म करेंगे। हम एक सोसाइटी, आइडियल सोसाइटी। अब उसके लिए उन्होंने अपने शब्दों को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन यानी गुरु ग्रंथ साहब की तरफ से दे दिया हमको। पर अब उसकी जो वाणी है, जो उद्देश्य है और उसका लोगों के आचरण में आना, इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्क हो जाता है। और उसके लिए हम देखते हैं कि इतने अच्छे वाणी हो, इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे गाइडेंस हो, फिर भी हम एक एंटी उनके सोच की तरफ से जाते हैं। तो ये ऑपरेशन की जो बात है, ये ऑपरेशन की बात का एक सोच में है कि ये आदमी या व्यक्ति खुद को ऊंचा क्यों सोच रहा है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट स्पेशली चाइल्ड साइकोलॉजी के डोमेन में हुए हैं कि बच्चे खुद को ऊंच नीच क्यों समझना शुरू करते हैं। अब तुम्हारे घर में अगर कोई नौकर रानी हो जी, या ड्राइवर हो या नौकर हो या माली हो, वो बच्चा अपने माँ बाप को देखता है कि वो किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, और वो इमीडिएटली बच्चे में रजिस्टर हो जाता है कि मेरे में और इस औरत में फर्क है। हालांकि ये मेरी माँ की उम्र की है, पर मैं इसको उतनी रेस्पेक्ट नहीं दूंगा जितनी मैं उस औरत को औरत या आंटी के हिसाब से दूंगा। मैं उसको उसी तरह से रेस्पेक्ट दूंगा जहां तक उसकी औकात है। तो बच्चों को जो है ट्रेनिंग घर से मिलती है, और फिर वो आगे जस्टिफाई करते हैं कि वो किस तरह से इस प्रिविलेज पोजीशन में। हमको यह करना होगा, हमको जो ये संसाधन है, जो रिसोर्सेस है, जो खुद को एक कॉन्फिडेंस बनाते हैं, समाज में एक स्टेटस देते हैं, वो स्टेटस, वो संसाधनों को रीडिस्ट्रीब्यूट कैसा किया जाए ताकि फिर कोई ऊंच नीच का है। मटेरियली मुझे लगता है एक बात हो सकती है, क्योंकि स्पिरिचुअली तो हमारे पास बहुत अच्छे ट्रेडिशंस है, बहुत अच्छे काम करके गए हैं हमारे पूर्वजों ने। वो प्रैक्टिस में नहीं है ना, वो सारी चीजें प्रैक्टिस में नहीं है हमारे। बिल्कुल, क्योंकि हमने जो खुद की जो स्पिरिचुअलिटी है वो मटेरियलिज्म से जोड़ी है। एग्जैक्टली। स्पिरिचुअलिटी तुमको सब इस, जैसे भगवान बुद्ध कहते थे कि इस मोह माया, ये राग, ये द्वेष, इससे दूर लेकर एक बिल्कुल आम आदमी कैसा बनना है, एक सिंपल आदमी। हालांकि हाँ, आपका घर अच्छा हो उसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा है, पर हमने क्या किया है, हमने खुद की स्टेटस
किसके बटवे में कितना है उसके ऊपर करी है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए हमने अनेक कारण दिए, उसी का आउटकम देखते रात जैसी व्यवस्था को बनाया जो जस्टिफाई करते रहती है कि ये नीचे जाति की जिन्होंने कर्म किए, हमको इतना पैसा, हम अच्छे कर्म किए। तो हमको मुझे लगता है कि मटेरियली इसके ऊपर थोड़ा सोचना होगा। जमीन जो है, जमीन को रिडिस्ट्रीब्यूट करना होगा, और जो अनेक जो अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है उसके लिए हमको अनेक अफर्मेटिव स्टेप्स लेने होंगे। और उसके साथ साथ समाज का जो प्रिविलेज कास्ट है, प्रिविलेज क्लास है, इनमें एक मोरालिटी की भावना तैयार करने की कोशिश करनी होगी। पता नहीं वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, पर मैं जरूर जानता हूं कि इंसान होता है। इंसान में अगर हम कहीं ना कहीं उनको एक मौका दे इंसानियत का, तो शायद इसमें कुछ बदल होके, क्योंकि देखिए ये जो दरवाजा बंद कौन कर रहा है। हाँ। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, सोशल मीडिया पर आया था जी। वो जो रनिंग होती है अपने गांव में जो लोगों को, तो एक जो बच्चा है वो दौड़ रहा है सबसे आगे, पर एक व्यक्ति गाड़ी पर है, वो उसको बोल रहा है, उसके भाई के लिए वो सपोर्ट कर रहा है, साइड में है, तो वो उसका भाई जीत नहीं पा रहा है। तो ये जो गाड़ी वाला बंदा है जो सबसे आगे दौड़ रहा है, उसको मारता है, उसको गिरा देता है ताकि उसका भाई जीत जाए। जी। अब देखो, फेयर कंपटीशन को भी हमने मार दिया। तो हमको कहीं ना कहीं समाज में एक अवेयरनेस लानी होगी, एक गिल्ट तैयार करना होगा कि देखिए इस तरह की जो भावना है वो गलत है, और इसको हम उनके अपने खुद के एक अस्तित्व से मुझे लगता है जोड़ना होगा, ताकि कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमको। सूरज जी, जो आपने 2-3 बार बोला कि हमको ये करना होगा, लेकिन ये जो हम है ना, वो हम एक नहीं है ना, चक्रीय है, हम बंटे हुए हैं। हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं परमिंदर स्वैत जी, हमारे यहाँ ये भी एक एक्टिविस्ट के तौर पर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और अच्छी लेखिका भी है। परमिंदर स्वैत जी। हाँ जी परमिंदर जी, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੂਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਆ ਜਾਂ ਊਚ ਨੀਚ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਤਾਇਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਲਝਣ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢਣੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਪਈ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਪੈਣੀ है। हाँ जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, सूरज जी, कोई कमेंट आपका? नहीं, मैं परमिंदर जी का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने प्यार से फोन किया और तारीफ की, आपकी भी की। थैंक यू। हाँ जी, कुछ कॉलर्स थे हमारे साथ, वो डिस्कनेक्ट हो गई कॉल, लेकिन आपको मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं रोकूंगी। अंत में आप आज के हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो हम है ना,
मैं उसी बात पे फिर से आ रही हूँ, जैसे परमिंदर जी ने बोला ये काम लोगों को करना पड़ेगा। देखिए, इंटेंशन की बात है। अगर हम सरकार के एंगल से देख रहे हैं, अगर हम जो हैं वो, इनको मैं इन्वर्टेड कॉमा में रख रही हूँ, हम सरकार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार को किसने बनाया है? क्या हम सरकार को उस तरह से अकाउंटेबल भी रख रहे हैं या नहीं रख रहे? और हमारी इंटेंशन और सरकार की इंटेंशन क्या सेम है? इस चीज का भी मैटर करता है। जो हम सब हैं, जिसमें हर तरह के लोग आ रहे हैं, गोरे हैं, काले हैं, सो कॉल्ड अपर क्लास, लोअर क्लास या कास्ट हैं, ये सब उसमें आ रहे हैं। जब हम, मेरे ख्याल से हम कह रहे हैं, तो सूरज जी मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सब राजी नहीं हैं इस चीज के लिए। नहीं, आपने ये हम की परिभाषा को आपने सवाल उठाया और मैं बिल्कुल आपसे राजी हूँ, क्योंकि हम में कौन कौन हम है, या केवल हम या आप और मैं ही हम है क्या? देखिए, मुझे लगता है कि हर एक को इसमें कुछ ना कुछ हमको बताना होगा कि उनका इसमें इंटरेस्ट हो जी। देखिए, जैसा हम गली में कुछ त्योहार करते हैं या जो कुछ होता है, तो हम इस तरह से करते हैं कि ताकि गली के सब या मोहल्ले के सब लोग जुड़ जाए। उनका कुछ ना कुछ अपनी तरफ से इंटरेस्ट होता है। एक कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी हो सकता है। हमको ये जो कम्युनिटी जो इंटरेस्ट है, जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट से जुड़ी जा सकती है, उसको मुझे लगता है ढूंढ के निकालना होगा। जहां तक भारत की बात आई, अपने देश की बात आई, यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 24,500 जातियां और सब कास्ट, जिसको सब कास्ट कहते हैं। अब इतनों में बटा हुआ देश फिर भी आज एक है, इतने धर्म है, क्योंकि इसको जुड़ने वाला एक कॉमन डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन। अब हमारे पास जो है कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाली जमात जो जिन्होंने मानना चाहिए, वो उसी की हम देखते हैं कुछ ना कुछ बहाने से वो उसका इम्पैक्ट कम कर देना चाहते हैं। और जिस दिन भारत के संविधान को ये डाइल्यूट या इसकी वैल्यू को कम कर दिया गया, उस दिन से फिर भारत के जो अनेक डिविजन है वो एकदम ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि फिर कोई कहेगा कि हमारा संविधान लाओ, कोई कहेगा हमारा संविधान लाओ। ये जो डिविजिवनेस है वो फिर बहुत धोखा हो सकता है। तो हमारे हम के इसमें मुझे लगता है जो नेल्सन मंडेला जी ने किया, जिन्होंने दुनिया का कॉज बनाया, कैलिफोर्निया से लेकर पुर्तगाल तक, जहां से मैं अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ लिस्बन के आज अखबार में पढ़ रहा था सुबह थोड़ी देर पहले, और उसके साथ साथ यूरोप के, ईस्ट यूरोप से लेकर जापान से लेकर इंडिया तक, अफ्रीका के अनेक देशों तक, उन्होंने एक अपने खुद के एक्ट से उन्होंने दुनिया को इंस्पायर किया। लाइक दुनिया के लोग मंडेला का आज नाम दुनिया भर में जानते हैं। जैसा आपने कहा, यूनाइटेड नेशंस उनका बर्थ ये मंडेला डे करके मनाता है। तो देखिए, कुछ तो एक मॉरल फोर्स है, और मुझे लगता है हमको उस मॉरल फोर्स को हम में जगाना होगा, क्योंकि हमारे अतीत में एक मोरालिटी की दिया जलते रहता है। हम नेचर से क्रूर नहीं होते हैं, हम नेचर से गलत नहीं होते। हम तो एक देखिए उसी तरह से है कि जिस तरह से हमको बताया गया हमने उसको माना, अभी हमको रीलर्न करना होगा बिल्कुल। और ये रीलर्निंग की प्रोसेस में मुझे लगता है मेरे जैसे और नवजोत जी आपके जैसे और हमारे समाज के और जो लोग हैं जो इसको सही मानते हैं, उनको डिसएग्री खुद के साथ कर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना होगा, क्योंकि हमने डिसएग्री ही करके आएंगे तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड बात बन सकती है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत सी चीजें हैं जो हमें अनलर्न करने की जरूरत है, जो हमें सिखाई गई हैं, जो गलत हो सकती हैं। अनलर्न करेंगे तो उसके बाद कुछ नया सीखा जा सकता है। सूरज येगड़े जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्द ही फिर से बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। मुझे अभी भी याद है कि चेतना एसोसिएशन ने हमको मिलाया था जी, और मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे आज फिर से आपका और शेर पंजाब के सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।